Dear students, I hope that you have completed your first two lessons of Flamingo, and now today we are going to discuss over the first poem of Flamingo, My Mother at 66. Now I am going to introduce the poem before you. Elderly parents want companionship. Elderly parents want companionship, caring and love. They are old and not able to move around as much as they used to move in their past. They are lonely and want their children to spend a little time with them. A kind word and some moments of our life or moments of our time give them happiness. They feel gloomy and abandoned if they are ignored. We must remember that we all have to grow old, and a day will come when we will want some attention and company. In this poem, My Mother at 66, composed by Kamala Das, the poetess describes the image of her aging mother. She says that aging means becoming old. Aging is a natural process, and her mother is now 66. She looks sick and very old. Poetess has a fear that her mother would not live long enough to see her again, to see her next visit, as she has come to visit her mother. She drives with her mother to the airport. She sees her mother's image, and it presents the old age. And again she looks outside of the car and sees young trees running behind with car. Just we practically see when we drive, we see that the trees are both side of the road, left behind. There looks running very fast. Again she sees the young children. They are happy and playing in playful, joyful mood. After seeing the young trees or boys, poetess reminds her childhood. Here are the two images. First, the image of poetess mother, that she is at 66, physically weak and old. And again, other side, the image of young children, young trees that are full of life, youth, and vitality. You have already received the main theme of the poem, and write down the theme in your notebook. Now I am going to explain the poem. Dear students, notice the structure of poem. It is a one line poem, we can say, because there is no use of full stop or question mark at the end of any sentence. It is blank verse.
Now see carefully. Driving from my parents' home to Kochi last Friday morning. इस पोयम को पढ़ने के लिए बिल्कुल प्रोज की तरह, जैसे हम लोग प्रोज पढ़ते हैं और उसका लाइन से मीनिंग निकाल लेते हैं, ठीक उसी तरह से अगर हम इसको केयर करेंगे बहुत आसानी से इस पोयम को हम समझ लेंगे। जैसे यहाँ तक क्या है, कह रहा है कि ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग। तो कहाँ से वो अपनी कार की ड्राइविंग शुरू करती है, तो कह रही कि फ्रॉम माई पेरेंट्स होम। ड्राइविंग अपने शुरू करती है कार की अपने पेरेंट्स होम से। कहाँ तक उसको जाना है, टू कोचीन, एयरपोर्ट तक जाना है उसको। टाइम भी दे दिया है, इट लास्ट फ्राइडे और इट वॉज मॉर्निंग टाइम। तो इस तरह से हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि द पोएटेस इट स्टार्ट्स हर ड्राइविंग फ्रॉम हर पेरेंट्स होम टू कोचीन एयरपोर्ट लास्ट संडे मॉर्निंग। आई सा माई मदर बिसाइड मी, बिसाइड मैंने बगल में, कहती कि उसकी माँ जो है उसके बगल में बैठी हुई, मीन्स हर मदर इज सिटिंग बिसाइड हर। वह अपनी माँ को क्या करती है, देखती है। ऐसा हर माई, उसकी माँ बगल में बैठी हुई है सीट पर और उसको वो देखती है। अब किस कंडीशन में उसकी माँ उसको दिखाई दे रही है, तो डॉज ओपन माउथ, ओपन माउथ। उसकी माँ जो है झपकी ली हुई है, ऊँघी हुई है, और किस तरह से उसका मुंह खुला हुआ है, क्योंकि 66 उसका एज है, फिजिकली कमज़ोर भी हो गई है। तो जनरली हम देखते हैं कि लोग सोते हैं तो उनके मुंह खुल जाते हैं, तो उसी स्थिति में वो अपनी माँ को देखती है। फिर कहती है हर फेस ए सेम लाइक दैट ऑफ ए कोर्स। यहाँ तक देखते हैं, पहले केयर करेंगे इसको। हर फेस, उसका चेहरा किस तरह से दिखता है, लाइक ए सेन, एस ग्रो पैल या राख, एस दैट ऑफ ए कोर्प्स। उसका चेहरा इस तरह से मुरझाया हुआ दिखता है, इस तरह से दिखता है जैसे कि वो एक कोर्प्स हो, एक डेड बॉडी हो। उसकी माँ कार पे बगल में बैठी हुई है, उसके चेहरे को देख के पोएटेस क्या सोचती है, उसकी तुलना करती है। और यहाँ पर एक और चीज़ नोटिस करेंगे, जैसे लाइक दिया हुआ है ना, तो लाइक से कंपेयर किया गया है एसेन और कोर्प्स को, तो यहाँ पर एक फिगर ऑफ स्पीच भी हुआ जिसको हम लोग सिमिली कहते हैं। और देखने के बाद वो क्या सोचती है, क्या रियलाइज करती है, तो रियलाइज्ड विथ पेन, उसको बड़ा कष्ट होता है देख करके कि दैट सी वाज एज ओल्ड एज सी लुक्ड बट सून। अब वो उसके माँ को देखती है, कहती कि उतनी बूढ़ी है जितनी कि वो दिखती है, नहीं उसके ओल्ड एज के बारे में सोच करके वो चिंतित होती है। और इस विचार से, इस निगेटिव थॉट से निकलने के लिए क्या करती है, पुट दैट थॉट अवे एंड लुक्ड आउट एट ए यंग ट्री स्प्रिंटिंग। पीछे छूटते हुए पेड़ों को देखती है। मैरी चिल्ड्रेन स्पेलिंग, घर से बाहर फील्ड में निकलते हुए प्रसन्नचित बच्चों को देखती है, आउट ऑफ देयर होम्स दिया है। बट आफ्टर एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक स्टैंडिंग ए फ्यू यार्ड्स, जहाँ पर एयरपोर्ट पे उसको चेक किया जाता है वहाँ से कुछ गज की दूरी पर वो खड़ी है। आई लुक्ड अगेन एट हर, एक बार फिर अपनी माता को देखती है, माँ को देखती है, क्या देखती है, लुक्ड हर अगेन वैन पैल अननेचुरली, अस्वाभाविक रूप से बिल्कुल उसके चेहरे पर पीलापन है, फिजिकल वीकनेस का सिंबल होता है ये। एज ए लेट विंटर्स मून, जिस तरह से क्या हो, तो विंटर का मून हो। फेल्ट दैट ओल्ड फेमिलियर फेस, फेमिलियर एक मैंने कष्ट या दर्द होता है। माई चाइल्डहुड फियर्स बट ऑल आई सेड वाज सी यू सून अम्मा। वो अपने बचपन के दिनों को भी याद करती है,
वो डर जाती है जब उसको लगता है कि उसकी माँ अब ज़्यादा समय तक इस दुनिया में नहीं रहने वाली है। फिर वो अपनी माँ की ओर देखती है और कहती है सी यू सून, मैं शीघ्र ही मिलूंगी, ऐसा कहती है। ऑल आई डिड वाज स्माइल एंड स्माइल एंड, 3 बार ये जो स्माइल वर्ड यूज किया यानी इम्फेसाइज, इस बात पे जोर देने के लिए किया गया है कि वो उससे पुनः मिलने की इच्छा करती है, डिजायर रखती है। इस प्रकार से ये बिल्कुल सिंपल सी पोयम है, बहुत छोटी सी पोयम है, लेकिन ये एक इमोशनल पोयम है, फीलिंग से रिलेटेड पोयम है, और इसमें पोएटेस जो है अपने फीलिंग को दिखाती है। इस पोयम को हम लोग इंग्लिश टू इंग्लिश भी बड़ी आसानी से कर सकते हैं। देखिए यहाँ से आप उसको इंग्लिश सेंटेंस बना करके और बहुत आसानी से, और प्रयास भी यही रखना है कि हम इसको इंग्लिश टू इंग्लिश ही करें, हिंदी समझने के लिए एक बार यूज हो गया। When the poetess is on her way to Cochin airport last Friday, and it was morning, with her old mother, Cochin airport with her old mother, who was sitting beside her, who was sitting beside her. Again, poetess presents before us her mother image, and in which she looks like she is napping with her opened mouth, and her face is just like a corpse. She compares her mother with a dead body. And realized with pain, and she felt pain that she was as old as looked, but soon put that thought away and looked out. But poetess is pained and shift her attention outside of the car in order to drive out the negative feelings. She sees outside running trees and playing children. तो playing मेरी children इसमें, तो playing children symbolize life, youth and vitality. After that, it is the time of security check and standing a few yards. Looks her mother again. Poetess looks her mother again, and her mother is unnaturally pale. Her face looks very sick. Again, poetess, and here comparison also. Poetess compares as a late winter moon, simile, a figure of speech simile here, as, like, as, or as comparative word, and felt एक familiar ache, pained. The poetess is reminded of her own childhood, my childhood fear, reminded of her own childhood, and she wishes to see her mother again. And the word smile emphasize her opinion or view that she desired to see her mother again. Now notice the poetic devices. As you have already told you that her face a scene like that of a corpse, simile. As a late winter moon, it is also simile. Again, trees sprinting, यहाँ पर पेड़ को दौड़ते हुए दिखाया गया है, जबकि रियली पेड़ दौड़ते नहीं हैं। तो यहाँ पर जो फिगर ऑफ स्पीच होगा वो पर्सोनिफिकेशन होगा। एंड द मेरी चिल्ड्रेन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम, यहाँ पर मेटाफर है।
trees sprinting, merry children running out of their homes as a late winter moon। ये सब इमेजरी हैं, इसमें इमेजेज हैं। और ये जो लास्ट में दिया हुआ है स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, तो इसको हम लोग रिपीटिशन कहते हैं, पोएटिक डिवाइस के रूप में रिपीटिशन। इम्फेसिस के लिए, हाईलाइट करने के लिए किसी वर्ड, सर्टेन वर्ड पे ये जो है इस तरह से लिखा जाता है। तो इसमें हम पोएटिक जो डिवाइस है उसको भी केयर कर लेंगे। ओके।